अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स ऑफ क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve remaining numericals of chapter number 5. So let's move towards the lightboard. Numerical number 5.4, and the statement is the acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 meter per second square. The radius of moon is 1740 kilometer. So find the mass of moon. So अब acceleration due to gravity on the surface of moon आपको बता दी गई है which is 1.62 meter per second square. और आपको मून का रेडियस भी बता दिया गया है which is 1740 किलोमीटर. तो आपने फाइंड करना है मून का मास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो राइट डाटा फर्स्ट. सो डाटा में हमें गिवन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन which is 1.62 meter per second square. So G is equals to 1.62 meter per second square and we have radius of moon जिसको मैं R M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ which is 1740 किलोमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1740 किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 10 raised to the power 3. So we know that किलो is equals to 10 raised to the power 3. तो अब इस किलो की जगह पर मैं प्लेस कर रहा हूं इसका मल्टीप्लायर which is 10 raised to the power 3 meter. And we have to find mass of moon. That is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. To find now write solution. So mass of earth जब आप find out कर रहे थे तो उसमें आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था which is mass of earth is equal to r square g over capital G which is gravitational constant. तो उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे mass of moon which is equals to r radius of moon and G is the gravitational acceleration on moon divided by capital G which is a gravitational constant. Now just we have to put the values in it. So mass of moon is equals to Rm which is 1740 into 10 raised to the power 3 meter and the value of G is 1.62 divided by G which is 6.673 into 10 raised to the power minus 11. So this is basically Rm square. तो यहाँ पर हम इस रेडियस की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर मेंशन कर देंगे. Now just have to solve it by using calculator and you got the final answer which is the mass of moon and which is equals to 7.35 into 10 raised to the power 22 kilogram. So this is the mass of moon. Now move towards the next numerical 5.5. Calculate the value of G at a height of 3600 kilometer above the surface of the earth. तो आपने वैल्यू ऑफ G कैलकुलेट करनी है कि ग्रेविटी की वैल्यू वहां पर क्या होगी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर. कि अगर हम अर्थ की सरफेस से अबव 3600 किलोमीटर की हाइट तक चले जाएं तो वहां पर G की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपने कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो राइट डाटा फर्स्ट. डाटा में यहां पर आपको सिर्फ हाइट की वैल्यू बता दी गई है which is 3600 kilometer. So height is equals to 3600 kilometer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में and height is equals to 3600 into किलो की जगह आ जाएगा 10 raised to the power 3 meter. Now we have to find the value of G. GH gravity at height that is equals to question mark. So this is what we have to find. Now write solution. So gravity at height का भी एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था which is
GH is equals to capital G mass of earth over R plus H whole square. Simply we have to put the values in it. अब आप सोच के रहे होंगे कि डाटा में तो आपको सिर्फ हाइट गिवन है, सो G, M और R की वैल्यू कहाँ से आएगी? G इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो आपको याद होनी चाहिए, which is 6.673 into 10 raised to the power minus 11. Similarly, mass of earth की भी फिक्स वैल्यू है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, 6 into 10 raised to the power 24 kilogram. And the radius of the earth, which is 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. तो ये वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए. न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यूज गिवन नहीं होंगी और वो खुद से आपने फॉर्मूले में मेंशन करनी होती हैं. सो GH इज इक्वल्स टू कैपिटल G की वैल्यू है 6.673 into 10 raised to the power minus 11 and mass of earth which is 6 into 10 raised to the power 24 kilogram divided by R. radius of earth है 6.4 into 10 raised to the power 6 plus height है 3600 into 10 raised to the power 3 and whole square. Now simply we have to solve it by using calculator and we got the final answer that gravity at height is equals to 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो उस हाइट पर जो ग्रेविटी है वो सिर्फ 4 रह जाएगी. अब जरा ये बताएं कि अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है. तो अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर आप अर्थ से 3600 किलोमीटर की हाइट तक चले जाएं, अर्थ की सरफेस से अबव अगर आप मूव कर जाएं, तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू रह जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. न्यूमेरिकल नंबर 5.6 and the statement is find the value of G due to the Earth at geostationary satellite. The radius of the geostationary orbit is 48700 kilometer. So again यहाँ पर आपने value of G find करनी है due to the Earth at geostationary satellite. और आपको geostationary orbit का radius भी बता दिया गया है which is 48700 kilometer. Let's suppose कि अगर आपके पास ये अर्थ है तो हमारे पास सैटेलाइट जो है लेट्स सपोज कि वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है. सो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट. अब इस ऑर्बिट का आपको रेडियस बता दिया गया है विच इज, तो हम अर्थ के सेंटर से लेंगे इस ऑर्बिट का रेडियस एंड विच इज 48700 किलोमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. तो बेसिकली डायग्राम ड्रॉ मैंने इसलिए की बिकॉज आपको ये क्लियर हो जाए कि वो जो हाइट है, जो एक स्पेसिफिक हाइट पर जो सैटेलाइट मौजूद है, तो हमें उसका कंप्लीट रेडियस बता दिया गया है विच इज 48700 किलोमीटर. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे सेपरेट हाइट आपको नहीं बता दी गई, आपको टोटली उसका रेडियस बता दिया गया है कि अर्थ के सेंटर से लेकर उस ऑर्बिट तक का जो रेडियस है वो 48700 किलोमीटर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो डाटा में आपको गिवन है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विच इज RO एंड विच इज इक्वल्स टू 48700 किलोमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में एंड वी नो वेरी वेल दैट किलो का मल्टीप्लायर होता है 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ G at this height and that is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know the formula gravity at height, that is equals to capital G mass of earth over R whole square. So this is basically radius of the orbit. So अब यहाँ पर हमने हाइट मेंशन क्यों नहीं की, बिकॉज वो कंप्लीट रेडियस आपको बता दिया गया है विच इज 48700 किलोमीटर. अब आप सोच ये रहे होंगे कि 48700 सिर्फ आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो G और M कहाँ से आएगा.
G इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और M मास ऑफ द अर्थ, तो इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये दो वैल्यूज कांस्टेंट हैं, जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो ग्रेविटी एट हाइट दैट इज इक्वल्स टू G व्हिच इज 6.673 into 10 raised to the power minus 11, and mass of earth which is 6 into 10 raised to the power 24 divided by our radius which is 48700 into 10 raised to the power 3 whole square. इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से and you got the final answer which is 0.17 meter per second square. So this is the gravitational acceleration at the height of the total geostationary orbit with the radius of the geostationary orbit is 48700 kilometer. Let's have another question. At what height value of G would become 1/9 than on the surface of the earth? So कितनी हाइट पर वैल्यू ऑफ G जो है वो 1/9 बाकी रह जाएगी एज कम्पेयर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने ग्रेविटी एट हाइट का फॉर्मूला यूज करके हमने बहुत सी वैल्यूज कैलकुलेट की, तो यहाँ पर भी सेम आपने उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने हाइट कैलकुलेट करनी है कि कितनी हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 1/9 बाकी रह जाएगी। सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर यह बता दिया गया है कि ग्रेविटी उस हाइट पर जो अर्थ पर ग्रेविटी है उसकी 1/9 बाकी रह जाएगी। Now we know that G is equals to capital G M mass of earth over R square, and also we know that gravity at height is equals to capital G ME over R plus H whole square. So अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई कैन राइट हियर दैट G is equals to 9GH. Simply we have to put the values in it. So G की जगह वैल्यू हम पुट करते हैं इसकी G mass of earth over R square and 9 gravity at height, इसकी वैल्यू आ जाएगी G mass of earth over R plus H whole square. So G mass of earth G mass of earth के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 over R square is equals to 9 over R plus H whole square. तो अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि R प्लस H होल स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, R प्लस H होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 R स्क्वायर। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, now square root of R plus H whole square is equals to 9R square, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा R प्लस H दैट इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और R का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा R। अब ये R सिंपली वहाँ पर जाकर ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सो H इज इक्वल्स टू 3R माइनस R, so H is equals to 3R minus R which is equals to 2R. So that means कि at the height of 2 earth radius जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1/9 बाकी रह जाएगी। क्लियर?
आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. सो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.